I'm Dr. Varinder Sarwal. I'm working as Director and Head of Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery here. After starting my career in a Scots Heart Institute, New Delhi, I came back to Chandigarh in 2003, and for the last 16 years I'm working here and had the privilege of starting three big centers in the Tri-City. Like I started helped starting Fortis and then with Alchemist and then Max Hospital. Alchemist and Max we started from scratch. So while working there, the idea came in that we should build something as doctors and we should drive the hospitals by the doctor psychology because we can only understand the pain of a patient, which probably the corporates are infrastructurally or other facilities are very good, but the feeling or the emotions we what we call empathy sometimes is missing. So that was the dream which came in, and we wanted to provide the Tri-City with the same facilities, but with a different platform, which was that the treatments of the patient should be with compassion, economical, and totally ethical and scientific. So when we started this journey, I got some colleagues of mine who joined hands, and five of us we joined hands to start this hospital. The basic aim of this hospital is to provide every patient a good facility, the good service, whatever he needs for his illness, based on two three principles which are very important in treating a patient. One is that it has to be totally ethical. If a patient demands it, needs it, then only it should be given. It should be based on the scientific guidelines, and we are happy that here in this hospital we have brought in everything which is latest in the world which is happening, and we started on some new techniques which I'll be dwelling on later. And the other thing is that it has to be a very quality and personalized care, and that was the main focus. And but at the same time it should not be very expensive, because healthcare we know that in India is little expensive and everybody cannot afford it. But still, when it's question of life, I mean the family and everybody gets together to serve that patient very compassionately, very happily, and then it becomes a bigger team. The family and the doctors and the department joins hands to treat that patient. So we are closing around now 200 surgeries in last 15 16 months, and with God's blessing the outcomes are very good. We have taken very challenging cases also, very high risk cases also refused by many centers in Punjab and north of even in Delhi. Yeah, and we could give them the treatments based on the scientific guidelines, and most of them, the majority of them have gone back home happy. The whole team, the cardiac surgery is always a big team work. It is not a single man show, and there is some part which is dedicated to me in the operation theatres to plan the surgeries and to execute the surgeries. But after that, post-op care is very important, which many times gets missing in other centers. And it basically requires a lot of trained people, and we are very proud that our post-op teams, the staff nurses and the technicians, they have experience of at least 15 to 20 years minimum, so they handle the patients very carefully, and they keep a very tight vigil, and that is how the success comes in after bypass surgery or after valve replacement. The other advantage of the department is that we are a complete department. We do all kinds of heart surgeries which are adult as well as pediatric. Any patient, any child who is above 9 months or 9 kgs, we can handle them here. And we have done in the last few months couple of patients, and we've started the pediatric surgery program also. In adults, we do all bypass surgeries, valve replacements, combined procedures, bypass and valve, and many of the sick patients who have been refused, and whether they were valves or whether they were bypass surgeries. So this is on the cardiac surgery front. Then we tackle all kinds of lung patients, or what we call thoracic surgery, and the vascular surgeries, which is that peripheral arteries of limbs or other things, or if they are involved, we can tackle them here with the finest care and the latest techniques. On the top of it, the care and the excellence is already there in the team, and Tri-City, we have made a name of our team is known as the most trusted team, because it's basically we are very transparent in dealing with the patient, and the communication of the patients at every level is huge, and we keep on telling them every time that what is happening to the patients and how he's progressing. To add to that, we in this hospital we are the exclusive one where we have added 2 3 new techniques. One is that
we don't give long cuts on the legs to take out the veins. We do it with a endoscope, जिसको लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं या दूरबीन बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपिक वेन हार्वेस्टिंग। तो उसका एडवांटेज ये है कि उसमें बहुत लंबा कट नहीं होता है, और टांग पे वो जो स्पेशली इन फीमेल्स, स्पेशली इस टेक्निक का जो वेस्टर्न कंट्री में जब आई थी तो उसका एक स्लोगन था that a lady, elderly lady on a swing, and she's in a skirt and show your legs. So that means कि वो स्कार किसी को भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली फीमेल्स में एंड स्पेशली ओबीस फीमेल्स में। सो इस टेक्निक के दो फायदे हैं, कॉस्मेटिक तो है ही है, दूसरा लंबे जो इंसिजन्स करके है उसमें इन्फेक्शंस या गैप्स आ जाना या हीलिंग में, और या पेन, दैट वाज द अदर थिंग जो इस वेन ग्राफ्टिंग के करके होती है। तो उसको अवॉइड करने अब छोटे छोटे दो कट्स होते हैं जिसके तरह दौरान जिसके थ्रू सारी की सारी हम वेन निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ वन न्यू टेक्निक, इट इज़ कॉल्ड EVH और एंडोस्कोपिक वेन हार्वेस्टिंग। And the other technique which we are now going to offer to our patients regularly within a month or so is minimal invasive cardiac surgery. अगर आपको अंदाज़ा है कि बाईपास सर्जरीज या ओपन हार्ट सर्जरी जितनी भी हैं एक सेंटर में बड़े इंसिजन से होती हैं जो 6 से 8 इंच के करीब होता है, एंड हम जो ब्रेस्ट बोन कहते हैं या सेंट्रल बोन को काट के हार्ट तक पहुंचते हैं, तो वो एक लंबा स्कार छोड़ता है, और उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं कि आप 6-8 हफ्ते ड्राइव नहीं कर सकते, कोई वेट नहीं उठा सकते। ये जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटी इंसिजन्स के थ्रू सेम बाईपास सर्जरी, चाहे वो बाईपास है या वैल्व रिप्लेसमेंट है या होल को बंद करना है, ओपन हार्ट सर्जरी कोई भी हम राइट या लेफ्ट इंसिजन से कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी इज़ यूजली डन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड वैल्व रिप्लेसमेंट्स राइट साइड से हम करते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि इसमें एक तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, पेशेंट हॉस्पिटल से चौथे दिन घर चला जाता है, एंड विद इन 2 days ही इज़ आउट ऑफ द ICU। मेन एडवांटेज यंग पेशेंट्स के लिए है कि जो पेशेंट्स ड्राइव नहीं कर सकते बड़ी इंसिजन के साथ, दे कैन ड्राइव विद इन 15 days और 3 weeks टाइम। दे आर बैक टू वर्क एंड दे आर बैक टू नॉर्मल वर्क, दे कैन इवन लिफ्ट वेट्स, बिकॉज इसमें हम ब्रेस्ट बोन को नहीं काट रहे हैं, रिब्स के थ्रू जाते हैं, रिब्स भी नहीं काटी जाती हैं। सो रिकवरी बहुत जल्दी है, एंड अभी ये जो टेक्निक है, आई वोंट से कि हम 100% पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो जब भी पेशेंट आता है हम उसको एक पहले असेस करते हैं वेदर इस टेक्निक से वो हम ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर ऑपरेबल है तो वी डेफिनेटली ऑफर दिस, एंड इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव दैन द अदर टेक्निक, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट लुकिंग एट द बेनिफिट कि अगर आप जल्दी काम को जा सकते हैं तो यू आर नॉट लूजिंग एनी मनी और फाइनेंशियली यू आर नॉट सफरिंग, so that is a bigger advantage. We are the only hospital which will be bringing these techniques here. Already we have started EVH and MICS भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। सो अगर हम देखें इन नटशेल ये डिपार्टमेंट हमने जो सोच कर बनाया था, हमारा जो ड्रीम था, वी आर क्लोज टू इट, इट्स गॉड्स ब्लेसिंग, वी आर फुलफिलिंग इट एंड फुलफिलिंग इट वेरी सक्सेसफुली और एंड वेरी compassionately. The patients who have experienced our services, they are going very happy. I always say this is a hospital which has a very good infrastructure as far as technically is involved, minus we don't have chandeliers or granites probably, but it has a very good ambience which is required for a hospital, whether it's hygiene or whether it is other things. दूसरा, अगर हम बाईपास की बात करें, बीइंग ए कार्डियक सर्जन आई विल लाइक टू टच ऑन दैट। आज की डेट में किसी की भी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो देयर आर साइंटिफिक वेज टू डील विद इट। हमारे पास 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, या तो हम उसको दवाइयों से ट्रीट करें, या उसको हम एंजियोप्लास्टी या जिसको स्टेंट कहते हैं, बैलूनिंग करके स्टेंट डालें, तीसरा है बाईपास करें। सो जो अभी लास्ट 10 साल में जो रिसर्च हुई है 2009 ऑनवर्ड, जो बड़े बड़े 2 ट्रायल्स हुए हैं, उसके हिसाब से आज की डेट में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें टाइप 1 और क्लास 1 इंडिकेशन जिसको कहते हैं प्रायोरिटी इंडिकेशन इन मोस्ट ऑफ द कॉर्नरी जो हार्ट की ब्लॉकेजेस हैं आर्टरीज की, एक्सेप्ट अगर आपकी एक ही नाड़ी में कहीं सेंटर में ब्लॉकेज है, उसको हम एंजियोप्लास्टी स्टेंट से कर सकते हैं। बट अगर तीनों नाड़ियों में है या दोनों नाड़ियों में है, उसको प्रेफरेबली हमें बाईपास करना चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। बाईपास करने के बाद एक तो ये प्रोसीजर जो है वो ड्यूरेबल है। अगर हम जब आर्टीरियल ग्राफ्ट लगाते हैं, और 95% पेशेंट्स हमारे आर्टीरियल ग्राफ्ट ही दिए जाते हैं उनको बाईपास में, तो आर्टीरियल ग्राफ्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम से कम हम 15 से 20 साल लेके चलते हैं।
सो इट्स अ ड्यूरेबल प्रोसीजर, आपको बार बार वो कोई प्रोसीजर या दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। दूसरा जो अभी लास्ट 3-4 साल से, क्योंकि दोनों प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी और बाईपास को देखा गया था कि इससे कोई सर्वाइवल में, जो एक क्वेश्चन पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि इनकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी, जो मैं आज कहना चाहूँगा कि उम्र कोई डॉक्टर या कोई भी टीम नहीं बढ़ा सकती है, वो तो भगवान के हाथ में है। बट डेफिनेटली जो स्टडीज साइंटिफिक हुई हैं उसमें बाईपास से सर्वाइवल ज़रूर बढ़ता है। उसका मेन एक रीज़न है कि जब भी हम एंजियोप्लास्टी स्टेंट करते हैं, वो जब भी बंद होंगे, चाहे वो 4 साल है, 6 साल है, जब भी बंद होंगे, वो एक सडन एक बड़ा हार्ट अटैक छोड़ते हैं। एंड मैनी ऑफ द पेशेंट्स डोंट सर्वाइव इवन आफ्टर हार्ट अटैक एंड आफ्टर व्हेन द स्टेंट ब्लॉक्स। बट बाईपास जब भी फेल होगा वो धीरे धीरे फेल होते हैं उसमें ग्राफ्ट, क्योंकि आपने 4 ग्राफ्ट दिए हैं। और सेकंड बेनिफिट है इसके, हार्ट को हम पूरा टैकल कर लेते हैं, तीनों, चारों, पाँचों, इवन 7 नाड़ियाँ तक भी बाईपास एक ही टाइम पे हो जाती हैं। सो वो धीरे धीरे फेल होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा लाइफ को ख़तरा नहीं रहता। दूसरा, जो आजकल टेक्निक है बाईपास की, वो भी चेंज हो गई है। जो पहले हम आज से 20 साल पहले या 15-16 साल पहले अगर हम देखें, पहले हार्ट को हम रोकते थे, बॉडी को मशीन पे डालते थे सपोर्ट करने के लिए, तो आज की डेट में सारा ख़त्म हो गया है। अब हार्ट बीट करता रहता है, साथ में हम बाईपास कर देते हैं। बीटिंग हार्ट सर्जरी या ऑफ पम्प सर्जरी जिसको कहते हैं, 16-17 साल से 99% पेशेंट्स को हम बीटिंग हार्ट सर्जरी के ही द्वारा बाईपास किया जाता है, उनकी सर्जरी की जाती है। 1-2 पेशेंट में पेशेंट बहुत सिक है, अनस्टेबल है, या कोई एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है और उस टाइम पे बीपी पल्स मेंटेन नहीं हो रहा है, तब उन पेशेंट्स को हमें बाईपास मशीन पे करना पड़ता है। वैल्व में भी अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले जो हमारे पास एक ही तरह के वैल्व होते थे, मैकेनिकल वैल्व जिसको कहते थे, या मेटल के जो वैल्व होते थे, उसमें हमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एक ब्लड थिनर देने पड़ते थे और साथ में उसका टेस्ट करना पड़ता था ताकि वैल्व ठीक चलता रहे। अभी वही लास्ट 12-13 साल से हमारे पास बहुत अच्छे टिश्यू वैल्व्स आ गए हैं जो एनिमल टिश्यू से बने होते हैं, और उनकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी या उसकी ड्यूरेबिलिटी भी 16 से 18 साल है। उनका फ़ायदा ये है कि 3 महीने बाद वो जो ब्लड थिनर हम देते थे पेशेंट्स को टेस्ट कराता हूँ, वो बंद हो जाता है, और खाली इकोस्प्रिन या जो एस्प्रिन की टैबलेट है या क्लोपिडोग्रिल जैसे है, उस पर वो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी रहती है, और स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, बिकॉज एल्डरली पेशेंट ज़्यादा ब्लीडिंग के प्रोन होते हैं। मैकेनिकल वैल्व या मेटेलिक वैल्व के साथ जो प्रॉब्लम थी कि अगर दवाई कम हो जाती है तो वैल्व चलना बंद कर देता है, अगर दवाई ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है, हैमरेज, सेरिब्रल हैमरेज है, ये चीज़ें किसी भी पेशेंट में हो सकती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। सो टिश्यू वैल्व से वो भी ख़त्म हो गया है। सिमिलरली बच्चों के भी सर्जरी में बहुत सारे एडवांसेस आ गए हैं, एंड उनके लिए जो मशीन, वो सारे पेशेंट मोस्टली, क्योंकि कंजेनिटल डिफेक्ट होता है तो उसको हार्ट को खोल के करेक्ट करना पड़ता है, तो वो बाईपास मशीन पे ही या हार्ट लंग मशीन पे ही करने पड़ते हैं। और पर उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल, जैसे ब्लू बेबीज़ हैं या किसी को होल है हार्ट में, ऊपर वाले चैम्बर्स में या नीचे वाले चैम्बर्स में, तो उनको बड़ी आसानी से आज की डेट में हम टैकल कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, कई कम्प्लेक्स जो कंजेनिटल जो होती हैं उसमें हम स्टेज करके कर सकते हैं, कि पहले हम छोटा ऑपरेशन करके उसको बाद में बड़ा ऑपरेशन में कर सकते हैं। सो नटशेल, हार्ट सर्जरी का एक अहम रोल आज की डेट में, जो भी हार्ट की बीमारियां, उसमें एक साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। और सिर्फ यही नहीं कि बाईपास सर्जरी के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं, बट लंबे समय के लिए और लाइफ की सर्वाइवल बढ़ाने के लिए हम उसको, बाईपास सर्जरी हो या वैल्व रिप्लेसमेंट हो, हम किसी भी तरह की टेक्निक को ऑफ़र कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल में हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, एंड हर तरह के पेशेंट हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। इवन कई चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट बहुत ज़्यादा बीपी वगैरह मेंटेन नहीं कर रहा, बहुत अनस्टेबल है, उसमें इमीडिएट बाईपास के लिए लेना पड़ता है। तो 24 घंटे 365 दिन साल के टीम तैयार रहती है, और जैसे ही हमें इंडिकेशन होती है कि इस पेशेंट को शायद जल्दी, तो घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर हम पेशेंट को लेके ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ टीम यहाँ रहती है एंड बाकी एकदम से असेंबल होके हम वी कैन टैकल दिस पेशेंट्स वेरी वेरी नाइसली, एंड वी हैव डन इट। रात को भी अगर, और अर्ली मॉर्निंग, एनी टाइम व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। So, and especially the other main thing which I want to convey is that बाईपास सर्जरी और या कार्डियक सर्जरी, हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट और कार्डियोलॉजी एक दोनों सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें अगर कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिकेशन कि किस पेशेंट को क्या चाहिए, इवैल्यूएशन अगर अच्छे से दोनों मिलके करें, जो हम हार्ट टीम जिसको बोलते हैं, जो आज की डेट में वर्ल्ड में कंसेप्ट आ रहा है
कि हर एक पेशेंट को अपना एक कार्डियोलॉजिस्ट ने देखना है और एक सर्जन ने देखना है और इवन एक उनके फैमिली फिजिशियन या नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, अगर तीनों मिलके वो रिपोर्ट्स को देख के डिसाइड कर पाएँ कि इस पेशेंट को क्या चाहिए, तो उस पेशेंट को एक ऑप्टिमल साइंटिफिक और बेस्ट जो ट्रीटमेंट है इकोनॉमिकली वो मिल पाता है। थैंक यू सो मच।